Okay, so the paper that we shall be attempting today is the Feb-March 2024 paper 2-2. The first question states, Figure 1.1 is a diagram presenting part of the phospholipid bilayer of a cell surface membrane. So this is your figure 1.1. Part 1 asks us, identify the part of a phospholipid molecule labeled A that forms bonds with phosphate heads and with fatty acid tails. What is the molecule which forms bonds with fatty acid tails and the phosphate head? What's the identity of A? They're asking us about this molecule. क्या molecule होता है ये? Glycerol. Very good. So glycerol basically is a trihydroxy alcohol. It has three OH groups. दो OH ग्रुप्स जो हैं वो फैटी एसिड्स के साथ एसोसिएट करके एक एस्टर बॉन्ड बनाते हैं और एक OH ग्रुप जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द फॉस्फेट हेड. Okay, next part. Cholesterol is an important lipid component of many cell surface membranes. Figure 1.2 shows the structure of a cholesterol molecule. Using the information in figure 1.2, explain the orientation, positioning of cholesterol molecules in the phospholipid bilayer as shown in figure 1.1. So cholesterol have a polar hydroxyl group. तो इसका इतना part जो है वो polar है. And then it has a non-polar part. तो ये जो इतना part है वो क्या है? वो non-polar in nature है. वो ये कह रहे हैं कि इस फिगर को, इस स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल को देखकर आप ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल की पोजीशनिंग क्या होगी इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का जो पोलर OH वाला पार्ट है इट इज इंटरैक्टिंग विद योर पोलर फॉस्फेट ग्रुप्स. Whereas जो इसका नॉन पोलर पार्ट है, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इट इज बेसिकली फेसिंग और इंटरैक्टिंग विद द हाइड्रोफोबिक fatty acid tails. So we will write the polar hydroxyl group interacts with the polar phosphate heads, whereas the non-polar part faces the hydrophobic fatty acid tails. State one role of cholesterol in phospholipid bilayers. So the role of cholesterol is pretty simple, pretty easy. It regulates membrane fluidity. Next part. Explain why sodium ions cannot cross phospholipid bilayers by simple diffusion. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. Can you guys tell me why? कल ही हमने डिस्कस किया सिंपल डिफ्यूजन और facilitated डिफ्यूजन. So yes, sodium ions are positively charged and thus will face repulsion from the hydrophobic fatty acid tails, or you can say from the hydrophobic core of the bilayer. Okay. Ions and some molecules move across the cell surface membranes by facilitated diffusion and active transport. Compare facilitated diffusion and active transport by stating
one way in which they are similar, and two ways in which facilitated diffusion is different from active transport. Now, the similarity of that the facilitated diffusion and active transport share, one of the common most similarity has to be both require a transport, both need membranes. हमारे पास membranes और ये तो movement ही across membrane हो रही है ना, so we can't answer that because the statement says ions and some molecules move across cell surface membranes by facilitated diffusion and active transport. तो हम ये अपने आंसर में नहीं लिख सकते ना, because that's obvious कि हमारे पास ये जो दोनों movements हैं, they are across the cell surface membrane. Both require transport proteins. अच्छा, एक और सिमिलैरिटी ये भी हो सकती थी, उन्होंने एक मांगी तो मैं एक ही लिख रही हूँ, बट अनदर सिमिलैरिटी विच यू कुड हैव रिटन would have been that both are basically specific for the molecules that they're carrying. यानी कि हमारे पास a specific molecule moves through channel proteins and specific molecules move through carrier proteins. तो आप specificity की भी बात कर सकते थे, लेकिन I would say a safer choice and a very obvious choice is the fact that facilitated diffusion हो गया या active transport हो गया, दोनों के लिए हमें transport protein या membrane proteins required होता है. ठीक है? Difference one and difference two. Facilitated diffusion और active transport का जो main difference है वो ये है that one requires energy in the form of ATP whereas the other does not require energy in the form of ATP. So we will say that facilitated diffusion is passive. This means it does not require energy, whereas active transport requires energy. Okay, you guys have sent some answers in the chat box as well. Facilitated diffusion occurs down the concentration gradient and active transport occurs against the concentration gradient. Yes, facilitated diffusion occurs down the concentration gradient, whereas active transport occurs against the concentration gradient. Next part. Okay, I want you guys to pay very close attention to the details of this part. So prostaglandins are small lipids produced in many tissues of the body. So this is some name that you're not familiar with. So जब भी कोई भी एक unfamiliar name, unfamiliar pathway, unfamiliar molecule की वो बात करेंगे, so वो आपको क्या कहते हैं, information देंगे. अक्सर क्या होता है that students get worried कि ओ हमने तो ये नहीं पढ़ा हुआ and वहां पर panic mode activate हो जाता है. So always know that if there is something which you've not studied as part of your syllabus, the examiner knows that कि आपने ये नहीं पढ़ा है, या आपके लिए एक नई information है, तो वो relevant information आपको provide करेगा. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपको क्वेश्चन में इतनी सारी डिटेल दी हुई होती है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता जो वो क्वेश्चन हमसे एक्चुअली पूछ रहा होता है, वो बस खामखा की लंबी की हुई होती है. ठीक है, सो कभी कभार दैट इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डिकोड द आंसर. समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी. तो खैर यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, सो इसीलिए वी गोना रीड इट वेरी क्लोजली. एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन इज दैट कभी भी कोई भी नया लफ्ज देकर, नई बात देकर, यू डोंट हैव टू पैनिक, बिकॉज अगर कुछ भी सिलेबस से हटके वो आपसे पूछेगा वो उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा. Prostaglandins are small lipids produced in many tissues of the body. One role of prostaglandins is to cause inflammation at the site of an injury or infection. So prostaglandins क्या है, वो lipids हैं. तो हमें ये पता चल गया वो किस किस्म के biological molecules हैं और उनका एक रोल उसने हमें बता दिया है कि वो inflammation cause करते हैं at the site of injury or infection. Inflammation is a normal first response of the immune system to injury or infection.
Cyclooxygenase, COX, is an enzyme that catalyzes one of the steps in the reaction pathway for the formation of prostaglandin. Prostaglandins जब बन रहे होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, उसका पूरा पाथवे उसने आपको बता दिया कि फॉस्फोलिपिड से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। एंड इस प्रोसेस में एक एंजाइम होती है साइक्लोऑक्सीजनेस, जो कि इस पाथवे में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम फॉस्फोलिपिड से प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन करवा सकें। The reaction pathway occurs in the smooth endoplasmic reticulum of cells. Part of the reaction pathway is shown in figure 1.3. सो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या क्या पता चला, प्रोस्टाग्लैंडिन एक लिपिड है ये पता चला, उसका रोल पता चला, वो फॉस्फोलिपिड से बनता है, उस पाथवे में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है साइक्लोऑक्सीजनेज, और ये जो पाथवे है, ये जो फॉर्मेशन है प्रोस्टाग्लैंडिन की, ये कहाँ पर हो रही है, ये आपके एसईआर में हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमसे, सजेस्ट एन एडवांटेज फॉर दिस रिएक्शन पाथवे अकरिंग इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ अ सेल रादर देन इन द साइटोप्लाज्म। क्यों हो रहा है ये पाथवे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनील में क्यों हो रहा है? SCR is involved in lipid transport. You can actually say that yes, SCR is basically the site of lipid synthesis and therefore it is involved in lipid transport. That's absolutely correct. So एक reason तो हमारे पास ये आ गया कि SCR क्योंकि site of lipid synthesis है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो लिपिड्स बनाएगा और वहीं से लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होंगे टू वट एवर नेसेसरी प्लेस दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो एंजाइम बन रही है, ये आपकी एंजाइम आरईआर पे क्यों बन रही है, कहीं और क्यों नहीं बन रही, तो आप यही बोलोगे दैट आरईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ लिपिड, वो हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनील में बन रहा है विच इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और जो जहन में बात आती है वो ये आती है कि हमारे पास आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। अब एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन अगर ये है तो हर एंजाइम का जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। So it is possible कि जो हमें optimum conditions चाहिए for this reaction pathway, वो optimum conditions पूरे सेल में खाली SER के पास प्रेजेंट हो, बाकी साइटोप्लाज्म में वो optimum conditions एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे कि हम लाइसोसोम्स के लिए कहते हैं कि लाइसोसोम्स की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच में ही काम कर सकती है, तो हमारे पास लाइसोसोम्स का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता है, एंड दैट इज वाई दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सो दैट जो एसिडिक इन्वायरमेंट है लाइसोसोम्स का वो सेपरेट रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे आपकी साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट से। सो दो रीजंस हम लिख सकते हैं। आपसे एक ही पूछा है, मैं दो इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये जब आप कभी भी गो थ्रू कर रहे हो इस सॉल्व वर्कशीट से तो आपको याद रहे कि एक ऑल्टरनेट आंसर क्या हो सकता था। सो एक आंसर हम लिख देते हैं दैट SCR is involved in lipid synthesis and lipid transport. Lipid synthesis and lipid transport. और हमारे पास दूसरा आंसर क्या हो सकता था, SCR has the optimum conditions or the optimum environment for the reaction pathway. ठीक है, clear है? Any questions, any ambiguities? Next part. Sometimes inflammation can have side effects such as pain. Aspirin is a drug that can be used to reduce these side effects. Aspirin reduces the catalytic activity of the COX enzyme by modifying the R group of one of the amino acids. हमारे पास क्या हो रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन जब रिलीज होते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं, दे कॉज इन्फ्लेमेशन, एंड व्हेन दे कॉज इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन, तो हमारे पास साथ साथ क्या होता है, पेन भी हो सकता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रहे हैं इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। अब पेन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उसके लिए हम पेन किलर लेंगे। एस्पिरिन इज बेसिकली अ पेन किलर।
सो हम प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग अ ड्रग। वो ड्रग क्या कर रहा है, वो जाकर आपकी जो एंजाइम है COX साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। ये इसकी जो एक्टिविटी है इसको रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेस द एक्टिविटी। अब COX की एक्टिविटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास कम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, कम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, कम इन्फ्लेमेशन होगी, कम इन्फ्लेमेशन होगी तो कम पेन होगा। ठीक है। So हमारे पास, coming back to this question, the question is stating that the aspirin drug is basically reducing the catalytic activity of the COX enzyme by modifying the R group of one of the amino acids. Enzyme है, यकीनन amino acid से बनी हुई होगी। So एक amino acid का जो R group है इस enzyme के, उसको modify कर दिया drug ने। Suggest how modifying the R group of an amino acid in the COX enzyme can reduce the catalytic activity of the enzyme. ये आंसर आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाएं कि आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। It affects the ionic bonding and changes the shape of the enzyme. The enzyme is no longer complementary to the shape of substrate. Hence, the enzyme substrate complex is informed. Right. That's correct. So, yeah, it would reduce the rate, obviously. Changes the shape of the enzyme's active site by disrupting the ionic hydrogen bonding and the hydrophobic interactions. Therefore, the active site is no longer complementary to the substrate. Less enzyme substrate complexes formed. Hence, reduced catalytic activity. Prostaglandins are examples of cell signaling molecules. Outline the process of cell signaling that leads to a response by the cells involved in inflammation. So they're asking us to talk about cell signaling. What happens in cell signaling is the prostaglandins, which are your cell signaling molecules, you can write them as your cell signaling molecules, are released by the cell and are transported to the target cell. अब टारगेट सेल पे जब वो जाएंगे, तो जो भी टारगेट सेल इनका होगा उसके पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होंगे। अब वो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होंगे उनसे हमारा सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाकर बाइंड करेगा। दे बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स present on the target cell, which triggers a response in the target cell. Clear? Any questions? Next question. Table 2.1.
shows descriptions of three types of white blood cell. Complete table 2.1 by stating the names of these three types of white blood cell. A large cell that has a bean-shaped, kidney-shaped nucleus, it can develop into a macrophage. Which cell can develop into a macrophage? Monocyte. Then a cell that has a large spherical nucleus and little cytoplasm, it responds to non-self antigens. So yes, lymphocytes have a large spherical nucleus. A cell that has a lobed nucleus, it is phagocytic. So लोब न्यूक्लियस हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के होता है. Okay. Dromedary camels are classified in the family Camelidae and live in desert habitats of North Africa and Asia. In these hot, dry environments, dromedary camels can lose up to 30% of their body mass from dehydration. तो उनके basically जो water content है, जहां जहां पर हमारे पास water present होता है, वो जो वाटर मास है बॉडी का वो 30% डिक्रीज हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से. causing their blood to become more viscous, thicker. आपका obviously अगर blood का जो fluid content है, जो water content है, वो water content कम हो जाए तो आपका जो blood है वो thicker हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है. Figure 2.1 shows a drawing of red blood cells of a dromedary camel. So ये आपके पास dromedary camel के red blood cells हैं. And figure 2.1 is a drawing of human red blood cells. Figure 2.1 and figure 2.2 show differences between the red blood cells of dromedary camels and the red blood cells of humans, suggest how these differences adapt dromedary camels for living in hot, dry environments. आप मुझे ये बताओ, and I want all of you to answer, Eamon, Anzal, Huma, and who else do we have? With Jiha, I think so, yeah. I want all of you to answer me कि आपको क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में. क्या डिफरेंसेस हैं ह्यूमंस के सेल्स में और ड्रोमेडरी कैमल्स के सेल में. ओके, दे आर नॉट बाइकॉनकेव. अच्छा, तो ये कैसी शेप आपको लग रही है अगर ये बाइकॉनकेव नहीं है. हाउ वुड यू डिफाइन दिस शेप जो ड्रोमेडरी कैमल्स की नजर आ रही है. ओवल. ओवल कह सकते हैं, एलिप्टिकल कह सकते हैं. ओवल कह सकते हैं बिल्कुल. अच्छा, अगर आप देखो तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है ब्लड की वो सेम मैग्निफिकेशन है ना. दोनों के ब्लड की जो स्लाइड है, दोनों का जो ब्लड स्मेयर है उसको हमने 2000 पर ही मैग्नीफाई किया हुआ है. अब मुझे बताओ आपको ज्यादा रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं. ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं इस एरिया में, इस वॉल्यूम में, या कैमल के ज्यादा नजर आ रहे हैं. सो हमें क्या क्या चीजें नजर आई हैं अभी तक जो डिफरेंसेस हमने फिगर आउट किए हैं. ड्रोमेट्री कैमल हैव ओवल RBCs, whereas humans have biconcave RBCs. दूसरा डिफरेंस हमें क्या नजर आया है. हमें नजर आया है that dromedary camels have more RBCs per unit volume of blood. तीसरा आई थिंक सो अंजल ने मेंशन किया था that dromedary camels have smaller RBCs. मैं ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि smaller RBCs कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आउटलाइन करती हूँ. ये मेरे पास एक ड्रोमेट्री कैमल का आ गया आउटलाइन, और मैं यहाँ पर एक ह्यूमन के उसको आउटलाइन कर देती हूँ. ये मेरे पास ह्यूमन का आ गया आरबीसी की आउटलाइन. कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है. Which RBC is smaller, which RBC is larger? Camel is smaller and humans RBCs are larger. हमारे पास क्या कहते हैं, ये तीन अडेप्टेशंस हमने फाइंड आउट कर ली. सब अग्री करते हैं तीनों अडेप्टेशन से. ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. सजेस्ट हाउ
These differences adapt dromedary camels for living in hot, dry environment. वो हमसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा डिफरेंसेस क्या हैं. डिफरेंसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ये 3 डिफरेंसेस हैं. इन डिफरेंसेस की वजह से क्या फायदा हो रहा है कैमल्स को? दिस इज द क्वेश्चन. और कैमल के ब्लड को क्या चेंज आ रहा था? कैमल का ब्लड जो है वो थिकर हो रहा था, मोर विस्कस हो रहा था, डिहाइड्रेशन की वजह से. तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर थिकर ब्लड है, yeah, we will be talking about how these three differences are helping the camel cope up with the fact कि उसका जो ब्लड है वो थिकर हो गया है. इजियर फ्लो, ठीक है, लेकिन कैसे इजियर फ्लो? मुझे एक समझाओ कि ये तीनों जो रीजंस हैं इनसे हमारा फ्लो इजियर कैसे हो रहा है. बात सही है, हमारे पास इन तीनों की वजह से जो, अच्छा, इन दोनों की वजह से एक्चुअली पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 की वजह से हमारे पास जो फ्लो ऑफ द ब्लड है वो इजियर हो रहा है. क्यों इजियर हो रहा है? एक्सप्लेन दैट. अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में हम लोग कभी ना कभी फंसे होंगे, राइट? अब ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में बहुत कम स्पेस है, बहुत रुक रुक के चीज गुजर रही है ना. सो इमेजिन कि जो आपका थिक ब्लड है उसमें एक रेजिस्टेंस होगी, उसमें फ्लो तो आसान नहीं होगा ना, बिकॉज जो ब्लड है वो थिक हो गया, उसका वाटर कंटेंट कम हो गया. सो अब उस ब्लड में जो चीज मूव कर रही है अगर वो लार्जर होगी, अगर वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, अगर वो हैवियर होगी, तो उसका मूव करना ज्यादा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू अ स्मॉलर एंड एन ओवल शेप आरबीसी. इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपकी रोड पे जब ट्रैफिक जाम है तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉर्च्यूनर हो गई, आपकी डाला हो गई, आपकी जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं जो ज्यादा जगह घेरती है, जिनको ज्यादा जगह चाहिए मूव करने की, वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगी क्योंकि ट्रैफिक जाम है. रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगी यानी कि स्पेस कम अवेलेबल होगी या फ्लो उनका मुश्किल हुआ होगा, तो जितनी बड़ी चीज होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगी व्हेन द ट्रैफिक फ्लो इज स्लोड. ऑन द कॉन्ट्ररी आपके जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो कहीं से भी जगह बनाकर निकल जाएंगे, या जो आपकी छोटी गाड़ी वाले होंगे, पतली गाड़ी वाले होंगे, वो इजिली फिर भी मूव कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अ राउंडर कार और अ लार्जर कार. डू यू ऑल एग्री विद दिस एनालॉजी? सो बिकॉज हमारे पास ब्लड थिकर हो गया है, जिसकी वजह से एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर रहे होंगे ब्लड सेल्स, हमारे पास जो एक एडवांटेज है इन ओवल शेप्ड आरबीसीज की और इन स्मॉलर आरबीसीज की, वो एडवांटेज ये है दैट दे कैन easily overcome the resistance which the viscous thicker blood has created, जिसकी वजह से इनका फ्लो, इनका ट्रांसपोर्ट टू बॉडी सेल्स कंपैरेटिवली आसान होगा. अब आरबीसी ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इससे फायदा ये होगा कि ऑल्दो हमारे पास ब्लड फ्लो स्लो डाउन हुआ है ना, क्योंकि जो पानी का कंटेंट है वो कम है, तो स्लो डाउन हुआ है ब्लड फ्लो. सो ऑल्दो हमारे पास ब्लड आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, लेकिन जितना पहुंचेगा उसमें नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा है. अगर हम ह्यूमन ब्लड की वॉल्यूम से कंपेयर करें कि ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम में, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं, और उसको कंपेयर करें कैमल के नंबर ऑफ आरबीसी से, सो हम क्लियरली देख सकते हैं, बल्कि काउंट भी कर लेते हैं. यहाँ पर हमें कितने आरबीसी नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. हमें 8 फुल आरबीसी नजर आ रहे हैं इतने वॉल्यूम में. ऑन दी अदर हैंड अगर हम उतने ही वॉल्यूम में देखें कैमल के आरबीसीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें ऑलमोस्ट डबल आरबीसीज उतनी ही वॉल्यूम में नजर आ रहे हैं कैमल के अंदर. सो ऑल्दो ब्लड स्लोली पहुंचेगा आपके टिश्यूज तक, आपके बॉडी सेल्स तक, लेकिन जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो ज्यादा आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन डिलीवरी मैकेनिज्म है वो क्या कहते हैं, सही से चल रहा होगा. आपकी जो बॉडी सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड्स हैं दे विल बी मेट परफेक्टली वेल. Are you all able to connect these three factors, these three adaptations, with how they're helping the camel survive? Yeah, that's exactly what we right answer. You're correct. सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई क्या इन तीन अडेप्टेशन से किस तरह से कैमल कोप अप कर पा रहा है अपने सर्वाइवल को?
So let's write these down. The camel RBCs are smaller and oval shaped in comparison to human RBCs. This reduces the resistance allowing the RBCs to move or to flow easily through narrow capillaries. सेकेंड अडेप्ट ये हमारे पास एक्चुअली दो मार्किंग पॉइंट्स हो गए हमने एक्चुअली इसमें दो मार्किंग पॉइंट्स को कवर कर लिया कि स्मॉलर आरबीसीज हैं एंड ओवल शेप्ड आरबीसीज हैं. These are basically two marking points that we've covered. And third, we'll say camels have more number of RBCs per unit volume, ensuring that sufficient amount of oxygen is delivered to the body cells. ठीक है? Let's move to the next part. The llama is also classified in the family Camelidae. Llamas live in mountainous areas of South America, often at altitude of 3,500 meter or higher. So ये high altitudes पे रहता है. As the altitude above sea level increases, the air pressure decreases. So हमें पता है कि हम जैसे जैसे sea से ऊपर जा रहे होते हैं, हमारा जो air pressure है वो decrease होता है, हमारी जो air है वो thin होना शुरू हो जाती है. The partial pressure of oxygen in the lungs of mammals at 3,500 meters is 6.4 kilopascals. They've told us कि अगर mammals जाएं या humans जाएं, for example, अगर humans इतनी height पर चले जाएं, जितनी height पर लामा रह रहे हैं, so उस height पर हमारा जो partial pressure of oxygen हम experience करेंगे, वो होगा क्या कहते हैं 6.4 kilopascals. हम वहां पर 6.4 kilopascals oxygen हमें मिल रही होगी. Figure 2.3 shows the oxygen dissociation curve of adult human hemoglobin and adult llama hemoglobin. With reference to figure 2.3, explain how the differences between the oxygen dissociation curves for humans and llamas show that llamas are better adapted for living at high altitudes than humans. अच्छा क्या एल्टीट्यूड था 3,500 मीटर के एल्टीट्यूड की बात हो रही है 3,500 मीटर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 6.4 है तो अगर हम 6.4 इस डायग्राम पे देखें 6.2 6.4 6.6 6.8 so this would be 6.4 right ये हमारे पास बेसिकली 6.4 है अब 6.4 पे अगर हम क्या कहते हैं ओह सॉरी राइट देयर इज ऑक्सीजन तो फिर हमारे पास एक यूनिट हमारे पास 4 का होगा तो ये हमारे पास 6.4 हो जाएगा this would be 6.4 है ना आप सही है so this would be 6.4 6.8 7.2 7.6 and 8 हाँ अब सही है thank you for correcting so this would become 6.4 अब 6.4 पे अगर हम देखें इस हाइट पे जितनी एयर अवेलेबल है हम देखें कि हमारे पास एडल्ट लामा हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से और अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से
सो अगर हम बात करें अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन की, सो दिस इज अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास ह्यूमंस की सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की। और अगर हम बात करें लामा की, सो लामा का जो कर्व है वो दिखा रहा है ये, दिस वुड बी 82, 84, 86। सो ये हमारे पास किसकी सैचुरेशन आ गई, लामा की सैचुरेशन आ गई। मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ? कैसे पता चल रहा है दैट llamas आर बेटर अडेप्टेड फॉर सर्वाइवल एट हायर altitudes in comparison to humans? What is the graph telling us about the hemoglobin of llamas and humans? क्या फर्क है, क्या मेजर फर्क है adult human globin में? And they have a higher percentage saturation than human. Okay, that's correct. They have a higher percentage saturation than human. तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं जी? हाँ, किसी भी चीज की अगर सेम पार्शियल प्रेशर पे कोई हीमोग्लोबिन ज्यादा सैचुरेटेड है, कोई हीमोग्लोबिन कम सैचुरेटेड है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज? अफिनिटी. The llama's hemoglobin has a higher affinity to oxygen, and therefore, at the same partial pressure, their hemoglobin is saturated by 86%, whereas the human hemoglobin at the same partial pressure is saturated by 80%. So हमारे पास ज्यादा अफिनिटी किसके पास है, किसके हीमोग्लोबिन में फॉर ऑक्सीजन? लामास की। ठीक है। सो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होगी किसमें? लामास में, in comparison to human. Are we all on the same page? Do we all agree with this conclusion? Anybody who is unable to understand the explanation? Okay, let's write this down. At the same partial pressure of oxygen, which is 6.4 kilopascals, the adult human hemoglobin the adult नहीं, मैंने दे दिया एक दफा पेपर, मैं खुश हूँ। आई वुड नेवर लाइक टू गो बैक टू द CI ऑफ माई लाइफ। मैं हर दफा अपने बच्चों को यही बोलती हूँ दैट जस्ट प्रे दैट CI इज ओवर एज सून एज पॉसिबल। जिंदगी बहुत अच्छी लगती है CI के बगैर। इट्स नॉट दैट यूनिवर्सिटी इज इजी और समथिंग लाइक दैट, बट मुझे लगता है CI का बहुत प्रेशर होता है, ग्रेड्स का बहुत प्रेशर होता है। सो वंस दैट्स ओवर, लाइफ इज बेटर। दैट्स माई पर्सनल टेक अवे। As 86, say 80%, adult human will have 80% saturation, oxygen saturation, whereas llamas have 86% oxygen saturation. This means that llama's hemoglobin has a greater affinity for oxygen, and thus more oxygen is delivered to their tissues. Okay, sketch a curve on figure 2.3 to show the effect of an increased carbon dioxide concentration on the percentage saturation of adult human hemoglobin with oxygen. हमारे पास राइट शिफ्ट आता है या लेफ्ट शिफ्ट आता है जब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होती है? राइट शिफ्ट आता है, क्योंकि हमारी जो अफिनिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है। सो हम राइट शिफ्ट का एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। सो आवर कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट। बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ही शो कर दो, हर ऑक्सीजन पे आएगा ना।
सो समथिंग लाइक दिस। तो ये आप कहीं पर भी राइट पे ड्रॉ कर दोगे अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के, सो आपका ये करेक्ट माना जाएगा। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोहर शिफ्ट। बोहर शिफ्ट क्या होता है? बोहर शिफ्ट हमारा राइट शिफ्ट ही होता है जो अभी हमने ड्रॉ किया है। आई वुड सजेस्ट ग्राफ पे जो आप काम करो वो डार्क पेंसिल से करो। मेक श्योर कि आप पेंसिल यूज करो और एक ऐसी पेंसिल यूज करो जो कि आपको देख सकते हो कि वो नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सो यूज अ डार्क पेंसिल। लाइट पेंसिल मत यूज करना, यूज अ डार्क पेंसिल। अच्छा जी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोहर शिफ्ट इन मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन सच एज लिवर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये मैंने सैम्पल क्वेश्चन नोट्स में और क्लास के टाइम पर लिखवाया भी था। सो टेल मी, क्या सिग्निफिकेंस है राइट शिफ्ट की, क्या सिग्निफिकेंस है बोहर शिफ्ट की? Type down your answers. I'll quickly grab myself some water, okay? Okay, so I have some answers in the chat box. Let's read them. So more carbon dioxide is released with decreased affinity of hemoglobin for oxygen. Hence, the oxygen is released for ADP production and aerobic respiration. That's correct. The Bohr shift allows the unloading of oxygen at the site of respiring tissues and the uptake of the waste carbon dioxide from the surrounding tissue fluid. Because the lower partial of oxygen hemoglobin has a higher affinity for carbon dioxide. Acha. The concept is correct, because yeah, just a slight correction I want to add. हमारे पास basically Bohr shift क्या कहता है? Bohr shift is basically defined as the reduction in the affinity of hemoglobin towards oxygen because of increased partial pressure of carbon dioxide. तो आपका ये concept बिल्कुल सही है। लेकिन when you're writing it ना, आप ये वाला जो sentence आपने लिखा है, ये वाला जो clause आपने लिखा है, that it allows the unloading of oxygen at the site of respiring tissues and the uptake of waste carbon dioxide, ये वाला part आप include नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बोरशिफ्ट का मतलब ही क्या है? बोरशिफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रही है आरबीसी में, उसकी वजह से अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स ऑक्सीजन कम कम हो रही है। सो बोहर शिफ्ट की वजह से अपटेक ऑफ द वेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। जब हम अपटेक करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से बोहर शिफ्ट आता है। सो ये जो क्रोनोलॉजी आप बस फिक्स कर लो, सही है? सो गलत नहीं है, बट जो सीक्वेंसिंग है दैट्स नॉट राइट। बस सीक्वेंसिंग सही कर लो। You'd say that Bohr shift refers to the uptake of carbon dioxide from the surrounding tissue, due to which the affinity of the hemoglobin for oxygen is reduced, causing the unloading of oxygen from the hemoglobin, which diffuses into the surrounding cells for aerobic respiration. So yeah. So Bohr shift is the decrease in hemoglobin's affinity for oxygen due to increased partial pressure of carbon dioxide, the uptake of carbon dioxide from respiring organs, or you can say tissues, आपकी मर्जी है. The uptake of carbon dioxide from respiring tissues reduces the affinity of hemoglobin for oxygen, resulting in the unloading of oxygen from hemoglobin, which diffuses to the respiring tissues for more aerobic respiration. So कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी. Next question.
Figure 3.1 is a photomicrograph showing part of a transverse section through the root of an Iris germanica. Irises are herbaceous monocotyledons. अच्छा, हमारे सिलेबस में जो हमें याद होता है ना स्ट्रक्चर्स, जो हम स्ट्रक्चर्स याद करते हैं रूट के, स्टेम के, लीफ के, वो हम डाइकोटिलेडन्स के याद करते हैं। मोनोकोटिलेडन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। These plants have the same transport tissues as the herbaceous dicotyledons, but the transport tissues are distributed differently. In monocotyledons, the central tissue in the root is the parenchyma packing tissue. अच्छा, अब हमारे पास सेंट्रल टिश्यू डाइकोटिलेडनस रूट्स में क्या होता है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट्स के? अगर ये एक डाइकोट रूट होती तो हमें सेंटर में क्या दिखाई देता? It's the structure of a root. Root का structure, if you have a pen and paper next to you, draw a structure of the root and tell me what's in the center. Xylem is in the center, right? They're saying कि हमारे पास जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इनके पास भी सेम ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं एज हर्बेशियस डाइकोट्स, राइट? तो इनके पास भी जाइलम और फ्लोम होते हैं, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइकोट्स। मोनोकॉट्स में अनलाइक डाइकोट्स जो सेंट्रल टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा होता है, जबकि डाइकोट्स में क्या होता है, जाइलम होता है। Cells R, S and T in figure 3.1 are found in different tissues. तो ये जो cells हैं ये different tissues के हैं. Name the tissues in which the cells are labeled R, S and T. Tissue in which cell R is found, tissue in which cell S is found, tissue in which cell T is found. अच्छा भाई, अब आप एक चीज देख रहे होगे, अगर हम S की बात करें, S is this cell, R जो है वो हमारे पास इस सेल को बुला रहे हैं, T हमारे पास ये जो छोटे सेल्स है ना इनको बुलाया जा रहा है। टेल मी, हमारे पास ना वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं, लार्जर ल्यूमेन किसका होता है? मैंने बताया था कि अगर क्या कहती हैं साइज सही से नजर आ रहा हो वैस्कुलर बंडल्स का, तो साइज से हम जाइलम और फ्लोम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। बिटवीन आर, एस एंड टी, टेल मी जाइलम क्या होगी? व्हाट इज जाइलम अकॉर्डिंग टू यू ऑल? जाइलम का ल्यूमेन कैसा होता है? इज इट वाइड, इज इट नैरो? एस वुड बी जाइलम, वेरी गुड। एस जाइलम क्यों होगी? क्योंकि उसका जो ल्यूमेन है वाइड है। आप इन तीनों उसमें देखो जो सेल्स हैं उनमें वाइडेस्ट ल्यूमेन किसका है? उसका है, क्या कहते हैं, एस का। तो जाइलम आपका वाइडेस्ट ल्यूमेन वाला सेल होगा हमेशा, ठीक है। मैंने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे कोएग्जिस्ट, जहां जाइलम होगी उसके साथ ही फ्लोम होगी। और कल हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा है, सो वी नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ फ्लोम के उसके बराबर में जाइलम हो, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है फ्लोम में, वो इसीलिए बिल्डअप हो रहा होता है क्योंकि बराबर में जो जाइलम है वहां से क्या आ रहा होता है, वाटर आ रहा होता है एट द सोर्स एंड, और जो सिंक वाले एंड पे होता है तो जो फ्लोम का वाटर होता है वो चला जाता है जाइलम के अंदर। सो जाइलम एंड फ्लोम आर ऑलवेज क्लोज टू वन अनदर। अब एस अगर हमने जाइलम आइडेंटिफाई किया है तो उससे जो भी चीज क्लोजर होगी दैट वुड बी फ्लो। अब आर इज नॉट क्लोज टू योर जाइलम वेसल्स, आपके जितने भी ये जाइलम के वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं इनके करीब, इनके एडजेसेंट आर नहीं है। आर और एस के दरमियान छोटे छोटे सेल्स हैं, तो जो छोटे वाले सेल्स होंगे वो आपके पास फ्लोम होंगे। सो एस इज जाइलम, टी इज फ्लोम, सही है, कोएग्जिस्ट करते हैं। बड़ा वाला ल्यूमेन जो होगा वो जाइलम होगी, छोटा ल्यूमेन जो होगा वो फ्लोम होगी, और आसपास होंगे एक दूसरे के। एंड ये रूट है, रूट में हमें पता है, अब चाहे वो डाइकॉट का रूट हो चाहे वो हमारे पास मोनोकॉट का रूट हो, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम है, वो तो सेम ही रहेगा ना सब में। हमने जो मूवमेंट पढ़ी है ट्रांसलोकेशन की या ट्रांसपोर्ट की, वो तो सेम ही रहेगी। अब जो आपकी एंडोडर्मिस होगी वो एग्जिस्ट करना जरूरी है मोनोकॉट्स की भी रूट में और डाइकॉट्स की भी रूट में। क्यों? एंडोडर्मिस का ऐसा क्या फंक्शन है कि एंडोडर्मिस लाजमी रूट में होनी चाहिए? व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट? स्यूबरिन प्रेजेंट होता है, इट फॉर्म्स अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे आपके पास एक कैस्पेरियन स्ट्रिप बन रही होगी, बल्कि यहाँ पे आप लोग पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप देख भी सकते हो। अगर मैं जूम इन करूँ, आपको जो ये डार्क डार्क नजर आ रहे हैं, ग्रेश जो नजर आ रहे हैं, आपको एंडोडर्मिस ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा होगा।
सो ये जो ग्रे एरिया है, जो डार्कली स्टेन्ड एरिया, दैट्स बेसिकली स्यूब्रिन। हर सेल का स्यूब्रिन उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। सो कैन यू सी कि जो ये इतने सारे स्यूब्रिन है, ये एक स्ट्रिप बना रहे हैं, एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बना रहे हैं, इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाते हैं। सो इसमें आप कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्चुअली विजुअलाइज भी कर पा रहे हो। सो ये जो ग्रे पार्ट्स है ना, ये ग्रे पार्ट्स आपके स्यूबरिन है। अब हर एंडोडर्मिस के सेल में ये स्यूबरिन प्रेजेंट है। सो कैन यू सी कि एक हमारे पास स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस बन रही है, इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर का होना, एंडोडर्मिस सेल का होना इसलिए जरूरी है बिकॉज एंडोडर्मिस में हमारे पास वी नीड टू फिल्टर आउट द टॉक्सिन्स, वी नीड टू फिल्टर आउट द अननेसेसरी सब्सटेंसेस बिफोर द वाटर एंटर्स द जाइलम। सो आर हमारे पास क्या होगी, एंडोडर्मिस की सेल्स हो गया। ठीक है, इसको आप एंडोडर्मल ही बोल सकते हो। अब हमें टिश्यूज के नाम लिखने हैं। टिश्यू इन विच सेल आर इज फाउंड, आर हमारे पास एंडोडर्मिस टिश्यू का सेल है। Tissue in which cell S is found, so the tissue is the xylem tissue. Tissue in which cell T is found, that is your phloem tissue. Outline the role of the tissue in which cell R is found in figure 3.1. अभी आप लोगों ने मुझे बताया that जो R है वो endodermis है। So endodermis क्या करती है? It stops or blocks the epiblast pathway and forces the water to move through the symplast pathway to ensure that any unnecessary or harmful substance is not present in the water before it enters into the xylem. ठीक है? So the tissue in which cell R is found blocks the apoplast pathway and forces the water with symplast pathway. This ensures the water is filtered before it enters xylem. State the example of an organic compound that is translocated in the root of an iris. So बहुत आसान है, sucrose लिख देंगे। The electron micrograph in figure 3.2 shows a section through some root cells in an onion. On figure 3.2, draw a label line and label it with the letter P to identify one plasmodesma. अब आपको यहाँ पर इस डायग्राम में, चाहे आप ऊपर वाला ले लो हिस्सा या नीचे वाला ले लो, आपको ये ब्रोकन एरिया नजर आ रहे हैं? आपको नजर आ रहा है कि हमारी जो सेल वॉल इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये बीच बीच में फ्रेगमेंटेड है। सो किसी भी फ्रेगमेंट पे आप क्या कहते हैं, पी लिख दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर। Table 3.1 contains information about 4 polysaccharides found in animals or plants. Complete table 3.1 by filling in the missing information. So we have to complete this table. फर्स्ट हमारे लिए हुआ हुआ है माइलोपेक्टिन का। अमाइलोज की बात करते हैं। अमाइलोज का क्या मोनोमर होता है? अल्फा ग्लूकोज, बिल्कुल सही। फिर सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज में हमारे पास कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं? सेलुलोज में हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन? इट इज द एनर्जी स्टोर इन एनिमल्स। यहाँ पर इन एनिमल्स लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने प्लांट्स की बात की हुई है, स्टार्च की। तो हमारे पास स्टार्च जो है दैट इज द एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, वेयर एज ग्लाइकोजन में एनिमल्स का मेंशन करना जरूरी है। Table 4.1 shows a sequence of 12 nucleotides in the template strand of a short length of a DNA molecule.
the corresponding primary transcript, and the 4 amino acids coded for by the sequence. The table is incomplete. Complete table 4.1 to show the sequence of nucleotides in the primary transcript. Primary transcript basically RNA की transcript की बात कर रहे हैं वो. That would result from the transcription of the short length of DNA. So let's complete this table. C के साथ आएगा G. Now this is RNA, तो यहाँ पर T नहीं होगा, U होगा. G A U G A G G U U G. सही है. एक दफा क्रॉस चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं की मैंने. सी के साथ जी, ए के साथ यू, जी ए यू जी ए जी जी यू यू जी. या Table 4.2 shows all the possible template strand DNA triplets that code for the same for the amino acids labeled AA1, AA2, AA3, AA4 in table 4.1. So ये हमारे पास 4 अमीनो एसिड्स हैं और ये दोनों डीएनए ट्रिपलेट्स दिए हैं कि कौन से डीएनए ट्रिपलेट्स कौन से अमीनो एसिड्स को कोड करता है. Complete table 4.3 to identify the 4 amino acids labeled amino acid 1, 2, 3 and 4 in table 4.1. हमारे पास पहला डीएनए ट्रिपलेट जो है दैट इज CAC. CAC हमें कहाँ नजर आ रहा है? वेलिन में नजर आ रहा है. तो हमारा पहला अमीनो एसिड क्या होगा? हमारा पहला अमीनो एसिड है वेलिन. फिर हमारा सेकेंड ट्रिपलेट जो है, सेकेंड ट्रिपलेट इज TAC. TAC हमें कहाँ नजर आ रहा है? मेथियोनिन में नजर आ रहा है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे पोजिशन नंबर 2 में मेथ. फिर हमारा तीसरा जो ट्रिपलेट है वो हमारे पास है TCC. TCC हमें कहाँ नजर आ रहा है? arginine में नजर आ रहा है. We'll write arginine. And then the fourth triplet is basically AAC. AAC हमें कहाँ पर नजर आ रहा है? ल्यूथीन में नजर आ रहा है. So हम ये लिख देंगे. Pretty easy. One type of gene mutation is caused by the substitution of a DNA nucleotide. Using the information in table 4.2, state and explain the effect on the final protein structure of a substitution of the nucleotide at position 3 in table 4.1. Position 3 क्या है? Position 3 हमारे पास है this position. नहीं, sorry, position 3 हमारे पास ये position है. This is our position 3. They're saying using the information in table 4.2, इस table की information को use करते हुए state and explain the effect on the final protein structure of a substitution of the nucleotide at position 3. Position 3 पे हमारे पास C है. अगर CAC के जगह हमारे पास हो जाए CAG, अगर CAG हो जाए तब भी हमारे पास वेलिन कोड हो रहा है, तो CAG से तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. फिर अगर हम CAG के जगह हमारे पास A आ जाए CAA, तो CAA भी जो है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है. और अगर CAC की जगह हमारे पास CAT आ जाए तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो भी हमारे पास वेलिन को कोड कर रहा है. सो बेस सब्स्टिट्यूशन of any nucleotide at position number 3 would have no effect on the overall structure of the final protein. Why? Because all the 4 possibilities are still coding for the same amino acid, which is valine. Is this clear? Any confusions, any questions? Okay, एक मिनट, एक question and let me read. Why does tRNA have uracil instead of thymine? Because it isn't the tRNA produces much. हमारे पास tRNA is it a type of RNA? हमारे पास 3 तरह के RNAs होता है ना, ट्रांसफर RNA, ribosomal RNA and messenger RNA. So we have tRNA, mRNA and tRNA, mRNA and rRNA. These are the 3 types of RNA. ये तीनों जो हैं ये किससे बने होते हैं? ये RNA से ही बने हुए होते हैं. They are basically RNAs. इनके रोल्स डिफरेंट होते हैं या इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है. टीआरएनए का बेसिकली वो क्लोवर लीफ शेप्ड होता है
और बाकी जो आपके mRNA है और rRNA है दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, इनका कोई यूनिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बस ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन ये तीनों जो हैं वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए होते हैं। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर बेसिकली AUGC। आपका कोई भी आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर हो, मैसेंजर हो, राइबोसोमल हो, उसमें आपके पास थायमीन प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चिया, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हमारे पास जो थायमीन है ना वो प्रेजेंट होता है डीएनए में। देखो हमारे पास टोटल 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। उनके न्यूक्लियोटाइड्स का जो फॉस्फेट वाला पार्ट है और जो शुगर्स वाला पार्ट है, अच्छा सॉरी, शुगर्स भी चेंज होता है। हमारे पास राइबोज होता है आरएनए में, हमारे पास डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में। क्या हमारे पास जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है उसमें राइबोज प्रेजेंट हो सकता है, उसमें राइबोज प्रेजेंट नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास जितने भी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें थायमीन प्रेजेंट नहीं होता। इसको ऐसे समझ लो कि राइबोज शुगर से कभी भी थायमीन बेस आकर अटैच नहीं होगी। In the final polypeptide, we have T, right? So at what stage during translation does it take place? What do you mean in the final polypeptide we have T? That's what I'm unable to understand. हमारे पास पॉलीपेप्टाइड किस चीज से बना हुआ होता है भैया? What is a polypeptide chain made up of? If I ask you to define me अब amino acid, so amino acid polypeptide chain में कोई भी न्यूक्लियोटाइड क्यों होगा, कोई भी बेस क्यों होगी? वो तो अमीनो एसिड से बना हुआ होगा ना। उसमें तो ना यूरासिल आपको नजर आएगा ना थायमीन आपको नजर आएगा, बिकॉज पॉलीपेप्टाइड चेन इज एसेंशियली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। वो तो अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर हो रहे हैं। आप क्या इस स्ट्रक्चर से कंफ्यूज हो रहे हो? जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक अमीनो एसिड होता है, आर यू कंफ्यूज अबाउट दिस? दैट्स द शेप ऑफ द टीआरएनए। हम टीआरएनए को ऐसे डिनोट करते हैं और इस पे आपकी कोई सी भी बेसिस होती है। टीआरएनए वैसे एसेंशियली जो है ना वो इस तरह का होता है। दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ द टीआरएनए। बट उसको आसान करने के लिए जैसे हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम टीआरएनए की शेप को ऐसे शो कर देते हैं। उसके टॉप पे अमीनो एसिड लगा हुआ होता है, दिस एंड उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस पे एक एंटीकोडॉन होता है। सही है। एंड वो एंटीकोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर द अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड का अपना यूनिक एंटीकोडॉन होता है एंड वो एंटीकोडॉन एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन से जाकर बाइंड करेगा। यानी कि अगर एमआरएनए में क्या चीज प्रेजेंट होगी, यूएजी कोड प्रेजेंट होगा, सिर्फ तभी ये अमीनो एसिड इसके क्या कहते हैं ट्रांसलेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि ये टी नहीं है, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। अभी भी कोई एम्बिग्विटी है? ओके। अच्छा, सो all the possible base substitutions at position 3 will code for the same amino acid, valine, or you can say VAL, as CAC, CAT, CAG, CAA, code for valine according to table 4.2, and hence no effect on the final protein structure. A second type of gene mutation is caused by the deletion of a DNA nucleotide. Using the information in table 4.2, state and explain the effect on the final protein structure of a deletion of the nucleotide at position 3. अब पोजीशन 3 पे हमारा ये न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया।
इट्स डिलीटेड। सो अब हमारे पास जो नई चीज बनेगी, जो हमारे पास नया टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा डीएनए का, वो किस तरह से रीड कर रहा होगा? वो बेसिकली ये तो सेम रहेगा, बट बाकी का जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टी आ जाएगा, ए सी टी सी सी, एंड देन वी हैव ए सी। तो हमारा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। अब इससे क्या होगा? अगर हम पोजीशन फर्स्ट अमीनो एसिड की बात करें, फर्स्ट अमीनो एसिड तो अभी भी हमारा वेरिन बन रहा है। सेकेंड अमीनो एसिड की बात करें, सेकेंड अमीनो एसिड है एसीटी। एसीटी क्या है? एसीटी तो कुछ हमें दिखाया भी नहीं दिया। डू वी हैव एसीटी इन दिस टेबल? या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? ओके। सो अगर हमारे पास एसीटी इस टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी अमीनो एसिड कोड हो रहा होगा एट पोजीशन नंबर 2, ना वो वेलिन होगा, ना वो अर्जिनिन होगा, ना वो मेथियोनिन होगा, ना ही वो ल्यूसीन होगा। सो सम अदर अमीनो एसिड, क्योंकि हमारे पास मेथियोनिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेथियोनिन का क्या हमारे पास वो है, कोडॉन है। इट इज टीएसी। अब टीएसी तो हमारे पास पोजीशन नंबर, हमारे पास जो ट्रिपलेट 2 है, उस ट्रिपलेट 2 में हमारे पास मेथियोनिन तो अब कोड होगा नहीं इस डिलीशन के बाद। सो सम अदर अमीनो एसिड अदर देन द मेथियोनिन वुड बी प्रेजेंट ऑन द सेकेंड पोजिशन। ड्यू टू दिस हमारे पास जो पूरा आपका क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा इन योर polypeptide chain. So, due to deletion, the polypeptide which will form would have valine as the first amino acid. However, the second amino acid will not be methionine, thereby changing the sequence of amino acids of the final protein. अच्छा, ACT। अच्छा, अगर हम ACT की बात करें, सो ACT का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, दैट वुड बी UGA। कैन यू टेल मी व्हाट इज UGA? कोई रिकलेक्शन आ रही है UGA की? इट इज अ स्टॉप कोडॉन। सो ओवर हियर हमारे पास दिस वुड बिकम द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वुड बिकम UGA। UGA जो है वो क्या होता है? स्टॉप कोडॉन होता है। So an abrupt introduction of stop codon would result in a incomplete or premature termination of translation. So we would say the deletion introduces a stop codon in the middle, resulting in incomplete translation. Is this clear? Replication of nuclear DNA occurs just once in every mitotic cell cycle. 6 named events associated
with the mitotic cell cycle are listed. These events are not listed in any particular order. Draw a circle around each event where replication of nuclear DNA occurs. Replication of nuclear DNA occurs in the S phase and the interphase. Why? Because हमारे पास अगर मैं mitotic cell cycle draw करूं, G1, S and the G2 phase, they are basically your, collectively they are termed as the इंटरफेस। ये आपका इंटरफेस है, तो इंटरफेस में ही तो एस फेज है, तो एस फेज में ही तो हमारे पास वो होती है, क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों फेजेस को हम सर्कल करेंगे। Yes, Angel, is there a question? Why do you think you should underline G1 and G2? Give me an explanation for that. हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में होती है ना, हमारे पास G1 फेज में और G2 फेज में तो होती नहीं है। हाँ, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इंटरफेस में आपका G1 भी आता है, एस फेज भी आता है और G2 फेज भी आता है। लेकिन जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो पर्टिकुलरली एस फेज में होती है, G1 और G2 में नहीं होती। इधर आपकी नहीं हो रही होती, इधर आपकी नहीं हो रही होती, खाली एस फेज में हो रही होती है। एस फेज किस फेज का पार्ट है हमारे पास? अगर हम सेल साइकिल को देखें, सेल साइकिल को अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो तीन कैटेगरीज हैं: इंटरफेस, माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। These are the three broad categories of the cell cycle. इंटरफेस होता है, इंटरफेस के फौरन बाद माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। एक सेल की जिंदगी इन तीन फेजेस पे मुश्तमिल है: the part where it is not dividing, the part where it is undergoing nuclear division, which is your mitosis, and the part where it is going through the cytoplasm division, which is your cytokinesis. तो सेल की साइकिल के तीन पार्ट्स होते हैं: इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इन तीनों में से माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, इंटरफेज में होती है। इंटरफेज को हमने फर्दर दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है: a phase before DNA replication, a phase after DNA replication, and a phase during DNA replication. G1 में हमारे पास वो फेज है बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। G2 वो फेज है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही। किधर हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज में हो रही है। सो वी कैन नॉट circle or choose G1 or G2 for the phases of the cell cycle in which DNA replication occurs. The only phases we can circle are interphase and S phase. सही है? Outline how DNA is replicated inside the nucleus. Pretty easy, हमने बहुत डिटेल में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए है वो हमारा, उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनवाइंड होता है, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं हमारे डबल स्ट्रैंड्स के वो टूटता है। सबसे पहले हमारे पास अनजिपिंग और अनवाइंडिंग ऑफ द double helix, unwinding or unzipping of the double helix by breaking the hydrogen bonds between two strands. फिर उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, the two strands serve as template strands complementary activated nucleotides bind to complementary nucleotides on the template strands. So we'll say activated nucleotides
form hydrogen bonds with the complementary nucleotides on template strands. DNA polymerase catalyzes the formation of phosphodiester bonds between adjacent nucleotides. तो ये आपके पास 4 मार्किंग पॉइंट्स हो गए. बट अदर देन दैट, अगर आप लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड वाली बात भी करना चाहते हो, डीएनए लाइगेज की भी बात करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो. बट ये एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पर आपके 4 मार्क्स मिल रहे हैं. सो इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू विद द आंसर यू कैन. One strand is synthesized continuously which is your leading strand, while the other strand is synthesized in fragments. DNA ligase forms the phosphodiester bonds between the Okazaki fragments. Okay? So this is basically how we will attempt a question if it comes on डीएनए रेप्लिकेशन. मैंने 7 मार्किंग पॉइंट्स का शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन नोट्स में, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का सवाल अक्सर आता है 4 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स के दरमियान वो आता है. सो यू शुड हैव 7 to 8 मार्किंग पॉइंट्स दैट यू नो about the DNA replication process so that you can answer and score full marks, because ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है मार्क्स गेन करने के लिए. Figure 4.1 shows the structure of an ATP molecule. State the name of the part of the ATP molecule labeled A. What's A? ए इतना सा पार्ट है, बस इस पार्ट को वो ये बुला रहा है. ए क्या है? इट्स द राइबोस शुगर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The pathogen that causes cholera is a prokaryote. Figure 5.1 shows an electron micrograph of the pathogen that causes cholera. Name the type of electron microscope used to produce the image shown in figure 5.1. Is it a 3D image or is it a 2D image? It's a 3D image. अच्छा, 2D इमेज अगर होगी सो टू और ट्रांसमिशन ये दोनों एक ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है ना, ट की आवाज आती है. 2D इमेज हमेशा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देगा, 3D इमेज हमेशा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रॉम द सेम प्रोनाउंसिएशन, ट 2D, ट ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो यहाँ पे क्योंकि 3D इमेज है, सो दिस वुड बी बेसिकली योर स्कैनिंग electron microscope. Name the species of prokaryote that causes cholera. It is basically Vibrio cholerae. The passage contains a description of the main features of prokaryotic cells. There is one factual error in the passage. Identify and correct the factual error in the passage. So we have to correct a mistake. Prokaryotic cells are unicellular and generally between 1 micrometer and 5 micrometer. That is correct. Prokaryotes do not have organelles surrounded by double membranes. Correct. They do have cell surface membranes. Yes, they have 70S ribosomes and a cellulose cell wall. That is incorrect. They have a peptidoglycan cell wall. The DNA of a prokaryote cell is circular, correct, and is found free in the cytoplasm rather than enclosed in a nuclear envelope. So the incorrect part, the factual error, is that they have cellulose cell wall, which is not true. They have peptidoglycan cell walls. So
Prokaryotes have a peptidoglycan cell wall, not a cellulose cell wall. Last question of this paper, and then you guys will be free, inshallah. Figure 6.1 is a simplified diagram representing a section through the human immunodeficiency virus, HIV, particle that causes HIV/AIDS. The diagram shows the virus particles about to attach to the cell surface membrane of a T helper cell at a protein called CD4. So they are saying कि ये जो virus है, it is about to attach to the cell surface membrane of a T helper cell at a receptor protein called CD4. तो वो receptor जो कि complementary होता है to the glycoproteins of the HIV, जिससे वो बाइंड कर रहा होता है, वो CD4 रिसेप्टर प्रोटीन होता है. यानी टी हेल्पर सेल का जो रिसेप्टर होता है या जो एंटीजन होता है CD4, दैट enables the virus to identify कि ओ ये हमारा टारगेट सेल है. The CD4 receptor protein helps the viruses to identify T helper cell. A second protein co-receptor called CCR5 is also necessary for the virus particle to enter and then infect the T helper cell. So T helper cell में दो proteins present होते हैं, CD4 protein और CCR5 receptor co-receptor protein, जो कि enable करते हैं entry of HIV particle को inside the T helper cell. Identify structure X in figure 6.1. ये है structure X. It's the capsid protein code. Explain how the ability of the immune system to resist the damaging effects of a pathogen is affected by destruction of T helper cells. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास T helper cells डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, so destruction of T helper cells, decrease in the count of T helper cells की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम की ability होती है to resist or to protect us from the effects of a pathogen, ओके, फ्यूअर प्लाज्मा सेल्स और फ्यूअर एंटीबॉडीज. ये तो बहुत ही आप आगे की बात करो. आप जो पहला पॉइंट है ना, क्या हो रहा है ऐसा, क्या वाई आर टी हेल्पर सेल्स नेसेसरी? टी हेल्पर सेल्स अगर नहीं होंगे तो क्यों हमारा इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है टू रेजिस्ट अ पैथोजन वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? व्हाट्स द रोल ऑफ टी हेल्पर सेल्स व्हिच मेक्स देम सो इम्पोर्टेंट? लेस साइटोकाइंस रिलीज, बिकॉज जो साइटोकाइंस है वो क्या करते हैं, वो हमारे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को रिलेट करवाते हैं या कनेक्ट करते हैं विद आवर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. तो हमारे पास वो साइटोकाइंस कम रिलीज करेंगे. जब तक साइटोकाइंस रिलीज नहीं करते टी हेल्पर सेल्स, तब तक हमारे पास जो हमारे बी सेल्स हैं और जो हमारे टी किलर सेल्स हैं वो स्टिमुलेट ही नहीं होता. सो अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होंगे तो हमारा जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारा लिम्फोसाइट वाला मैकेनिज्म है, वो ट्रिगर ही नहीं हो पाता साइटोकाइंस की एब्सेंस में. और साइटोकाइंस कौन रिलीज करते हैं? आपके टी हेल्पर सेल्स रिलीज करते हैं. सो वी विल से destruction of T helper cells results in a decreased production or release of cytokines, less B cells are stimulated, thus lesser plasma cells form, which in turn results in less production of antibodies. Subsequently, less T killer cells
are stimulated to eradicate cancerous and virus infected cells. So this is the final answer. Any questions? You can also say that fewer memory cells are produced. एक और additional point ये हो सकता है. Fewer memory cells are produced. ये भी लिख सकते हैं. Next part. Studies have shown that some individuals did not become infected with HIV even though they were repeatedly exposed to the virus. Later discoveries indicated that these individuals had a mutation in the gene for the CCR5 receptor protein. Suggest how mutation of the gene for the CCR5 co-receptor protein provided protection against HIV infection. So कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने repeatedly expose किया HIV वायरस के, लेकिन उसके बावजूद उनको HIV इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ. रिसर्च जब की गई उन इंडिविजुअल्स पे तो पता चला कि इन इंडिविजुअल्स की जो टी हेल्पर सेल्स हैं, उन टी हेल्पर सेल्स का जो CCR5 को रिसेप्टर प्रोटीन है उसकी जीन में म्यूटेशन हो गई है. इस म्यूटेशन की वजह से ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इन लोगों को HIV इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिली? टेल मी गाइस. सो द हमारे पास कोरिसेप्टर प्रोटीन का क्या काम था? कोरिसेप्टर प्रोटीन वाज इंपॉर्टेंट for allowing the virus particle to enter and then infect the T helper cell. So now, because the gene for the CCR5 co-receptor protein has undergone mutation, तो हमारे पास जो shape of the CCR5 co-receptor protein है वो change हो जाएगी, which would no longer be complementary to the virus in a way that it could allow the virus to enter the T helper cell. So, mutation in CCR5 co-receptor protein changes the shape of the protein and thus the virus is unable to enter the T helper cell. The use of monoclonal antibodies against the CCR5 co-receptor protein has been shown to be effective in the treatment of HIV infection. Outline how anti-CCR5 monoclonal antibodies can be synthesized in the laboratory using the hybridoma method. They're asking कि हमारी जो monoclonal antibodies होती हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं लेबोरेटरी में. तो हमारा जो पूरा लेबोरेटरी का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए, we're going to write that. However, the catch over here is हमें एंटी CCR5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एंटीजन क्या है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे? CCR5 है. कैन वी से दैट दिस इज आवर एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज चाहिए? डू यू ऑल एग्री कि CCR5 co-receptor protein is the antigen against which we want antibodies? सो हम स्मॉल मैमल्स में क्या चीज इंजेक्ट करेंगे? हम स्मॉल मैमल्स में बेसिकली इंजेक्ट करेंगे द CCR5 एंटीजन. सो इंजेक्ट द CCR5 antigen in a small mammal. क्योंकि उस स्मॉल मैमल के लिए तो ये नॉन सेल्फ एंटीजन होगा ना CCR5, तो इसके खिलाफ वो जो स्मॉल मैमल है वो प्रोड्यूस करेगा एक इम्यून रिस्पॉन्स. तो उस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे ऑन इट सरफेस टू दी CCR5 एंटीजन. तो हमारे पास कलेक्ट
the plasma cells containing anti-CCR5 glycoprotein receptors from the mammal spleen fuse the plasma cells with myeloma cells, myeloma cells form hybridoma cells. So the hybridoma cells in large fermenters and isolate the antibodies produced. ठीक है? Any questions? Any confusions? Myeloma cells are basically cancerous B cells जिसके साथ हम फ्यूज करते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स को so that हमारे प्लाज्मा सेल्स बेसिकली माइटोटिकली डिवाइड नहीं कर सकते एंड हमें ये इंश्योर करना है कि हम वो सेल्स जो एंटीबॉडीज हमारे डिजायर्ड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर सके ताकि उनके नंबर्स इंक्रीज हो सो फॉर दैट हम अपने प्लाज्मा सेल्स को फ्यूज कर देते हैं कैंसरस बी सेल्स के साथ जो कैंसरस बी सेल्स होती हैं दे हैव द एबिलिटी टू माइटोटिकली डिवाइड तो हमारे पास जो फ्यूजन होती है कैंसरस सेल्स की विद द प्लाज्मा सेल्स इट फॉर्म्स अ हाइब्रिडोमा सेल which can produce our desired antibodies as well as it can mitotically divide to increase its copies. So that's it for this paper.